6 years ago, in midst of the NRC-CAA storm, a poem echoed across the nation, a defiant anthem of resistance. तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे. Kagaz nahi dikhayenge. We will not show our papers, written by Varun Grover. It became a rallying cry for dignity and belonging. Today, that cry has returned. So has the demand. Kagaz dikhao. The call to prove one's citizenship is back louder and possibly more dangerous. Across BJP-ruled states like Haryana, Rajasthan, Orissa, Assam, Delhi, hundreds of Bengali-speaking Muslims are being detained, harassed, branded as outsiders, Bangladeshis, even Rohingya. আমার রাজ্যে আমার ছেলেকে কাল ধরে নিয়ে গেছে, কাল সকালবেলায়, এখন পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ নেই। কাল 4টের সময় কাল থেকে ছাড়েনি গো, ডকুমেন্ট থাকার কারণে ওরা মানছে না। আমরা ইন্ডিয়ার তাও আমাদের বাংলাদেশে বলছি। And now in Pune, far from the border, far from the conflict, a war hero's family has faced the unthinkable. A mob arrived at midnight on Saturday at the home of a Kargil war veteran. They didn't come to salute him. They came demanding proof of their Indianness. दरवाज़ा खोलो, पुलिस है हम लोग। पुलिस का नाम जब हमने सुना तो हमने अपने दरवाजे को खोला। जय सिया राम करके हमारे बच्चों को सबको पकड़ के यही करके हमारे घर में भी घुसे। फिर सबसे आधार कार्ड मांगने लगे। फिर मेरे अब्बू ने आधार कार्ड दे दिया। वो बोल रहे कि डुप्लीकेट है, जिसने बनाया उसको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे। जल्दी से लेके ज़्यादा बोल मत, नहीं तो मारेंगे वगैरह वगैरह। सर अब हमारे बाजू में हिंदू फैमिली भी है, 1-2 लोग, उनको आधार कार्ड देखा गया और फ़ौरन उनका नाम देख के छोड़ दिया गया। This is Hakimuddin Sheikh, a retired soldier of the Indian Army, a veteran of the 1999 Kargil War. He served from 1984 to 2000 in 269 Engineer Regiment. Originally from Uttar Pradesh, he spent most of his life in service in Pune. He has the discharge certificate, service ID, pension documents, proof enough for a grateful nation. But on Saturday night, they were not proof good enough for a mob to prove the nationality of the family of a soldier. And Hakimuddin isn't alone in his family's legacy of service. Salim Subedar, his uncle, fought in the 1971 war. Another uncle fought in both 1965 and 1971 wars. 3 generations, multiple wars, decades of service. Yet, their family members were asked, "Prove that you are Indian." और ये फातिमा मंजिल इधर के गेट पे आए थे। फर्स्ट ये घर है। बाहर आओ। नहीं आप रहो ना, ऐसे रहो। नहीं सर वो लोग आए करके और दनादन थोड़ा खुला था, दनादन आके घर में कूद के भाग के गए। इधर कम से कम अभी हम थोड़ा ही बताए, कम से कम 100 लोग थे। इधर से इधर हमको कहीं से भी निकलने को चांस नहीं लगा, कहीं से भी हम निकल के भाग सके। She is Jaibunisa, 60 years old, still shaken. On that night, a mob kicked down their door, entered their home and shouted,
कागज दिखाओ, नहीं तो तुम बांग्लादेशी हो. The men were taken to the police station. They were not rescued from the mob. Rather, at the police station, they were asked for their identities, their Aadhaar card details. Identity was not a presumption, it had to be proved. आप बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ, को याद है क्या हुआ था उस दिन? रात को आए और दरवाजे में लात मारने लगे और खिड़की में लात मारने लगे. ज़ोर ज़ोर से धड़ धड़ के आवाज़ आ रही है. अच्छा तो कभी हुआ ये लात कौन मार रहा है? फिर अंदर से आवाज़ दिए कि भाई हम डर गए थे सब, कौन 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 हो आप लोग, खोलो दरवाज़ा खोलो, पुलिस है हम लोग. उन्होंने, वो पुलिस वाले थे नहीं लेकिन पुलिस का नाम उन्होंने लिया. तो पुलिस का नाम जब हमने सुना तो हमने अपने दरवाजे को खोला. सिया राम जय सिया राम करके हमारे बच्चों को सबको पकड़ के यही करके हमारे घर में भी घुसे. अंदर जब भी दरवाजे के पास आए तो 50 लोग थे. 50 लोग थे. फिर बोले हमको आधार कार्ड चाहिए. अभी जो मेरे पास था हमने डर की वजह से फटाफट देने लगे. कुछ देर तक हम लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है. और उसके बाद मैं नीचे उतर के नीचे देखा सर, तो 6-7 लोग मेरे भाई को ऐसा मतलब घेरे हुए खड़े थे. तो उनके दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी मुझे समझ में नहीं आया. तो इतने में वो लोग क्या किए, फटाफट 6-7 लोग ऊपर चढ़ गए पूरा. जो लड़के लोग हमारे घर में आए थे ये सब करके गए, जय जय समझो नारा लगाने लगे. तो हम लोग और डर गए. समझो पगड़ी बांध के आए थे, कंधे पर रख के आए थे, सब कुछ रख के आए थे वो लोग. क्या रख के आए थे? ये जो पगड़ी बांध के आए थे ना, जी सिया राम जी सिया राम सब नारा लगाने लगे ऐसे. कितने बजे? जब भी आए तभी घर में घुसे तभी लगाने. रात को? हाँ. मतलब बिल्कुल हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त. हम क्या करें क्या नहीं करें. एक दूसरे से हम लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे. मतलब किसी से कोई बात नहीं करना, बिल्कुल एकदम खामोशी के साथ जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको करना है. फटाफट आधार कार्ड लाओ. 2 बच्चे यहाँ पे सो रहे थे. तो मैं उनको बोला भी, जो चेक कर रहे थे, मैं बोला ठीक है सर ये सो रहे हैं, मैं इनका आधार कार्ड आपको थोड़ी देर के अंदर दिखा देता हूँ. तो वो क्या किए, बहुत रूडली मेरे से बिहेव कर रहे थे, बहुत बदतमीजी के साथ बात कर रहे थे. और वो बहुत स्पीड के साथ यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए, उल्टा पुल्टी ज़बान उनकी जो थी, लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी उनकी. उस तरीके से मतलब कि सबको उठाने लगे, जल्दी जल्दी उठो, अपना अपना आधार कार्ड निकालो. जो कि हम लोगों ने आधार कार्ड दिखाया, उसके बाद बोल रहे हैं कि ये आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल दिखाओ. मैं उनको बोला भी कि एक काम करो, मैं आपको आधार कार्ड डाउनलोड करके अभी दिखा देता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, जितने लोग थे सबका आधार कार्ड ले लिया. उसके बाद बोले कि चलो एक काम करो, आप लोग नीचे उतरो. तो हमारे समझ में वही आया, जिससे जो आधार कार्ड जहाँ जहाँ थे जल्दी जल्दी में अर्जेंट में हम लोगों ने निकाला, क्योंकि उस वक्त एकदम डर का माहौल था. अर्जेंट में आधार कार्ड निकाल के उनके हाथ में दिए. फिर वो लोग बाहर निकले लेकर हमको जब, तो फिर बाहर उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया. फिर हमारे समझ में आया तो ये दूसरे लोग हैं, कोई ये पुलिस वाले नहीं हैं. और लेडीज़ नहीं थे, 2 पुलिस सिविल में थे. वो पुलिस ने कुछ भी नहीं सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं बोला. अब इतने बड़े बच्चे आधार कार्ड लेके सोते क्या, छोटे बच्चे आधार कार्ड की, हमें भी आधार कार्ड कोई लेके सोता है क्या. तो सब कैसे कैसे भी ढूंढ, जिसको मिला. अभी एक बच्चों को नहीं मिला हमारे, तो मोबाइल में दिखाने लगे, बोले ये नहीं चलेगा, मुझे कहीं से भी ढूंढ के ला के दो. अभी नहीं मेरा, कहाँ से ढूंढ के ला के दूँ. लेडी पुलिस थी कोई? नहीं सर, लेडीज़ पुलिस नहीं थी. औरत और बच्चों सबको लेके जा रहे थे. तो औरतों को हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, तो उसमें साथ में उनके पुलिस वाले थे. तो उन पुलिस वालों ने ही कहा होगा कि लेडीज़ को रहने दो. लेकिन ये बच्चे मतलब कि 13 साल के बच्चे, ये जो बच्चा भी है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सब उसमें शामिल थे, जो नाबालिग भी थे. नाबालिग बच्चों को भी वो लोग लेकर गए थे. पुलिस 2 सिविल में थे, ड्रेस में नहीं थे. वो 2 सिविल ड्रेस में थे, सादे कपड़े में थे, वो ड्रेस में नहीं थे. एक पुलिस रोड के पास खड़ा था, वो समझो ड्रेस में था. बाहर वो खड़ा था, बाहर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पुलिस था. 2 ये लोग के साथ में थे, ड्रेस में थे. हाँ 2 साथ में थे, सादा ड्रेस में थे, वो वर्दी में नहीं थे. वो उन्होंने आपको कुछ नहीं दिखाया, कार्ड वगैरह की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया.
कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ सपोर्ट भी नहीं किया कि छोटे छोटे बच्चे को क्यों उठा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे को क्यों लेके चलेंगे, लेडीज़ को ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आवाज़ निकालेंगे तो मारेंगे सबको, ऐसा क्यों बोल, एक आवाज़ उन्होंने नहीं निकाला। हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि साथ में पुलिस भी है। हम लोगों को 12:30 बजे तक लेके पुलिस चौकी चले गए थे। वहाँ पे जाने के बाद सबका आधार कार्ड जमा कर लिया उन लोगों ने। आधार कार्ड जमा करने के बाद पूरा एड्रेस नोट किया, यहाँ का हम लोग जहाँ से यूपी का हमारा जहाँ गांव है वहाँ का पूरा एड्रेस नोट किया उन लोगों ने, आधार कार्ड रख लिया। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं बता रहे थे कि किस रिगार्डिंग आए हैं, क्यों चेक कर रहे हैं। तो 3:30 बजे हमको लगभग छोड़ा गया वहाँ से और कहा गया कि सुबह आपको 11 बजे तक यहाँ पे आ जाना है, अगर आप नहीं आओगे तो आप लोगों को बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा। हम ये समझेंगे कि आप लोग बांग्लादेशी हो। उसके बाद आधार कार्ड जमा कर लिया था सर। उसके बाद 3:30 बजे हम लोग वापस आए। जब हम लोग आए सर, वो हम लोगों को बोले कि कल आप मॉर्निंग में सब लोग वापस आ जाना। हम लोग संडे के दिन हम लोग 10 साढ़े 10 बजे हम लोगों को बुलाया। हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जो जितने रात को थे सर, जो 2 पुलिस वाले थे, वो लोग भी रात वहाँ पे संडे के दिन थे नहीं, कोई नहीं था। वापस से वही प्रोसीजर वापस से हम लोगों के साथ फिर लोगों ने किया कि मतलब हमारा एड्रेस नोट्स किया। वापस बोले अभी तो सर है नहीं, वो छुट्टी पे हैं, आप एक काम करो, आप शाम को वापस आओ। हम लोग शाम को फिर गए सर। कितनी बार चक्कर हुई है? और सर हम लोग 3 बार गए हैं। हमारा आधार कार्ड भी नहीं दिया और बताए भी नहीं किस रिगार्डिंग हम लोग आप लोगों को लेके आए हैं। The family says all of this happened in front of the police. This Times of India report has quoted DCP Samay Munde. And we quote, "We acted on inputs about suspected illegal immigrants. Once documents were shown, they were let go. No third party was involved." Unquote. But News the Truth has accessed CCTV footage, and that tells a different story. The mob is visible at the house, outside the police station too. The CCTV footage clearly shows people outside the gate of Hakimuddin's house. Hakimuddin's family members could be seen stepping out of the house under the vigilance of the mob. Multiple CCTV footage indicate that the mob was either present with the police, accompanying them, or perhaps were even guiding the events. If police were present there at the spot, what did they do to control the mob? Question is, can anyone decide to suspect? Can anyone lead a mob because they suspect? Question is, who gave them the authority to investigate, to interrogate, to terrorize innocent Indians? चंदन नगर में जो इंसिडेंट सैटरडे संडे को हुई थी, उस प्रकरण में एक गुना ऑलरेडी दाखिल है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी विजिट किए हैं। आज हमारी जो विक्टिम खुद फैमिली है उनके साथ हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो इनके स्टेटमेंट्स के बाद अगर कुछ फ्रेश सेक्शंस लगानी लीगली ज़रूरत होगी तो उसको भी अप्लाई किया जाएगा और हमने आश्वासन दिया है कि कड़क कार्रवाई जो भी लोग इसमें प्रकरण में इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध की जाएगी। The police commissioner now says that law will take its own course, that he would assert justice. But the question still remains, will police always act on such unverified complaints? When mob gets to decide who belongs to India, when war heroes have to prove patriotism to strangers at midnight, then something is definitely broken. The family have been living here for over 40 years now. These children are born here in Maharashtra, here in India, yet they too were not spared. तकरीबन 11:30 बजे वो लोग आए और मुझे ज़बरदस्ती उठाने लगे कि उठो उठो। तो फिर मैं आया तो मुझसे पूछ रहे हो कहाँ के रहने वाले हो, तो फिर वगैरह वगैरह पूछे। उसके बाद बोल रहे हैं आपका आधार कार्ड कहाँ पर है। तो मैंने घर पे बोले जल्दी से लेके आओ और फिर गाली वगैरह दे रहे थे।
जय श्री राम का नारा लगाने लगे। फिर हमें गाड़ी पे लेके गए, उधर मतलब रुके थे, मतलब पुलिस, हमें पता भी नहीं था पुलिस है यहाँ पर। जब हम देखे कि पुलिस भी है तो फिर हमें गाड़ी पे बैठा है, उसके बाद चौके पे ले गए। इस थाने पे हमारे नेम पूछे, उसके बाद कहाँ के रहने वाले हैं, फिर कब से हैं, कैसे हैं, कब आए। क्या पहना था उन्होंने, कैसा बर्ताव था उनका? भगवा कपड़ा, वो भगवा पगड़ी वगैरह पहने थे। बहुत अजीब तरह से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? मतलब अगर तू जल्दी से लेके आएगा, चुटकी वगैरह बजा के जल्दी से लेके आ, ज़्यादा बोल मत नहीं तो मारेंगे वगैरह वगैरह। फिर सबसे आधार कार्ड मांगने लगे। फिर मेरे अब्बू ने आधार कार्ड दिया। वो बोल रहे कि डुप्लीकेट है, जिसने बनाया उसको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे। फिर घर पे गए, सबको घेरे, बोले कि जाओ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आओ। फिर मेरे पापा ऊपर जाने लगे, बोल रुको। उनके पीछे बोले कि 5 जन आगे जाओ, 5 जन पीछे जाओ। फिर उनको ऊपर लेकर गए। फिर बोल रहे थे कि ओरिजिनल वो दो। फिर उन्हें दिखाए तो बोल रहे सब डुप्लीकेट हैं। फिर उनको जमा किए, फिर सबको पुलिस स्टेशन लेकर गए। But despite the fear, despite the trauma, their faith hasn't vanished. Like their grandfather, they want to serve this country, to wear the uniform, to be part of the very idea of India that now doubts them. हमारे जो दादा हैं वो हैं मोहम्मद सलीम, सूबेदार हैं। ये इसी बम्बई सापर मतलब इंजीनियर रेजिमेंट से थे। और इन्हीं के बड़े भाई हैं नईमुल्ला। दिखाओ, फोटो दिखाओ। ये पहले की तस्वीर है इनकी, ये भी आर्मी में थे। और ये दूसरा एक पिता जो अपने बच्चे के साथ सो रहा था, वो उस बच्चे के साथ इस तरीके का सलूक होता है कि वो पिता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दिल में एक डर है। डर ये है कि अगर हमने कुछ कर दिया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे परिवार के साथ क्या होगा, हमारी औरतों के साथ क्या होगा। उन्हें ये बात का इल्म नहीं था कि आपके जो है परिवार के कुछ लोग हैं जो फ़ौज में थे? नहीं, उनको अभी ये सब उनको नहीं पता था कि समझो फौजी लोग को घर के ये लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले के घर के ये लोग हैं, वो लोग को नहीं पता था। जब हम लोग के साथ में ऐसा वो लोग बोले कि तुम बांग्लादेश को हो, तुम्हारा अगर जब ये सब बच्चों को पकड़ के लेके गए तो 3-4 बजे रात को 4 बजे सुबह छोड़े उनको, तो वहाँ के पुलिस बोले 9 बजे पुलिस चौकी में नहीं आ जाओगे तो तुमको हम बांग्लादेश वाले घोषित कर देंगे, और नहीं आपको गांव को पूरा प्रूफ दो, आप कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ को पुलिस वहाँ पता करेगा, तुम्हारे गांव का पुलिस तुम्हारे घर पे जाएगा, ऐसा बोले वो लोग। फिर हम लोग फिर अपने गांव को प्रूफ हम लोग सब जब जैसे हमारे समझ में आया तो हम अपने गांव को सब प्रूफ मंगाए कि हमारे तो इतना सरकारी नौकरी में थे, इतना हमारे फौजी लोग थे, तो हम अपना प्रूफ मंगा के सबको दिखाए कि देखो हम लोग इस जगह के हैं कि हमारे गांव को प्रूफ आपको चाहिए, तो हम अपना गांव को प्रूफ मंगा के दिए। इतने सालों से आप रह रहे हो, इसके पहले कभी ये हुआ? नहीं सर, आज कभी नहीं हुआ, पहली बार है सर। अगर उनको चेक भी करना था तो हम लोगों को एक बार इन्फॉर्म करते, हम लोग खुद पुलिस चौकी में जाके अपना पूरा आइडेंटिटी प्रूफ दिखा देते। हम लोग अभी कोई नए तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, हमारी तीसरी पीढ़ी है, करीब हम लोग 40-45 साल से यहाँ पर हैं। डर लग रहा है सर? ऑब्वियसली सर, डरने की बात ही है सर। तो जो आए थे सर रात में, जितने लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। आप रेंडमली किसी के घर में 11:30 बजे रात को तो आप जाके इंक्वायरी नहीं कर सकते हो। कोई हम लोग बाहर के नहीं है सर, अगर देखा जाए तो अगर 40-45 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है तो बाहर के नहीं कह सकते ना उनको। हमारा ऑन घर है, हमारा यहाँ पे बिजनेस है। आपको लगता है कि आप मज़हब अलग है इसीलिए मुसलमान हो, इसके लिए किया है? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है। मुझे उस दिन ऐसा लगा सर कि ये शायद इसीलिए किया गया हो। हम लोग मतलब इतना आपको अनसेफ कर रहे हैं अपने ही घर में,
अपने ही घर में इतना अनसेफ हो, हमको लग रहा है कि मतलब एक भीड़ की शक्ल लेके कोई किसी के घर में घुस जाए, आधार कार्ड मांगने लगे। और वो भी करीब सर 140-50 लोग थे। सर अब हमारे बाजू में हिंदू फैमिली भी है, 1-2 लोग, उनको आधार कार्ड देखा गया और फ़ौरन उनका नाम देख के छोड़ दिया गया। बोले ठीक है, सॉरी, जय श्री राम के नारे खुद भी बोले, उनको भी बोले आप भी ऐसा बोलो। और एक फैमिली हमारे सामने ही थी, वो हिंदू लेडीज़ थी, हालांकि हमारे तो पड़ोसी हैं, हमारा उनका कोई मामला नहीं है, लेकिन ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं ना सर। यानी हम तो आपस में मिल के जुल के रहते आ रहे हैं, हमको प्यार मोहब्बत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। भाई हम मुसलमान हैं, अपने घर के अंदर हैं, आप हो, लेकिन हम तो आपस में पड़ोसी हैं ना, एक ही देश के रहने वाले हैं, और मोहब्बत बांटने में क्या जा रहा है। तो ये लोग सर माहौल ख़राब करने का और लोगों का दिल तोड़ने का, इनको बांटने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, बहुत अफसोस हो रहा है सोच के, ये सोच के बहुत अफसोस हो रहा है। क्योंकि यहाँ का जो हमारे हिंदुस्तान का है वो तो चलो फ़ौज में थे, हम उनकी फैमिली से आते हैं, हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, उनकी फैमिली से आते हैं, लेकिन हम सब तो हैं हिंदुस्तानी ना, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हैं हम, वो तो अलग बात हो गई सर। यानी वो लोग फ़ौज में थे, उनके फ़ौज में होना वो तो गर्व की बात है, उस पर हमको नाज है। वो लोग फ़ौजी थे और हमारा देश, हम अपने देश के साथ में भी खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। This is more than a story of harassment. It's a story of memory, of legacy. When citizenship becomes suspicion, when papers become more powerful than sacrifice, the war for identity, it seems, isn't fought only on borders anymore. It is now fought at midnight, in neighborhoods, against mobs, even in the homes of those who once fought for India. Along with Ankit Salvi, Bureau Report, News the Truth, NTT.